السلام علیکم دوستو، آج جو کلپ ہم دیکھنے جا رہے ہیں نہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے۔ بریلویوں کے اندر ایک پرانی روایت چلتی آ رہی ہے کہ نعت کے دروازے ہیں اور پھر اس کو گانے نعت اور ایموشنل اسٹائل میں مکس کر کے لوگ ایک ایسی سوچ دے دی جاتی ہے جو قرآن اور سنت سے بہت دور ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی بار بار بتاتے ہیں دین کو ایموشنل پہ نہیں چلائی جا سکتی ہے، ایویڈنس پہ چلائے جاتے ہیں۔ چلو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کون ہے تو؟ ابے جیجا جی کا ہوٹل ہے۔ ارے جیجا جی اپنا ہوٹل نہ آگے۔ کون ہے تو؟ ابے جیجا جی کا ہوٹل ہے۔ ارے جیجا جی اپنا ہوٹل نہ آگے۔ کون ہے تو؟ ابے جیجا جی کا ہوٹل ہے۔ علامہ صاحب وہ جنتی دروازے کا بھی بتا دیں، بہشتی دروازے کے حوالے سے بھی۔ بالکل، اس کے بارے میں بہت ساری علماء نے تشریحات و تفسیرات بیان کی ہیں۔ اب میں ناظرین کو اپنے انداز سے بتاتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔ تو اس نے آ کر چاند اس کے چمچے کڑچے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ کہا بالکل یہ حدیث ہے۔ فرمایا رک جا۔ پھر فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی۔ فرمایا بابا کے بارے میں کیا کیا؟ کہہ رہے تھے تو مسلمان ہوتا، لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ فیض سے۔ اچھا، فرمایا مسلمان ہیں بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل۔ ولی کامل ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہشتی لگا لیتے، یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے۔ کیا کہنے، باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا۔ اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا۔ بہت اچھے۔ آپ نے جب یہ سمجھایا تو وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل قرآن ہوں، میں اہل حدیث ہوں، بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے، میں علامہ اکرام صاحب کی توجہ چاہوں گا، جس طرح آلو بخارے کا آلو سے تعلق نہیں نہ ہوتا، اسی طرح کئی لوگوں کا حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کہہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے یار؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جیسے لوگ لکھ لیتے ہیں یونانی دعا خانہ، بھائی یونانی دعا خانہ اس کا یونان سے تعلق ہی نہیں ہے، پرلے درجے کا جاہل بیٹھا ہوا نام کو کیش کر رہا۔ اسی طرح کئی لوگوں کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہی نہیں ہوتا، ٹائٹل وہ لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ تاجدار گولڑا نے ایک مسئلے میں بات سمجھا دی۔ بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا۔ پائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا۔ کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے۔ تو اب کیا جی، وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟
कुरान ने कहा सबसे निचले दर्जे में होगा। नबी का जनाजा पढ़ाना, नबी का थूक मुबारक, नबी का कुर्ता मुबारक कोई नफा नहीं दे सका। तो तुहाड़े बिस्ती दे दरवाजे ते सब बढ़ाए बढ़ुए ने अपने। हाँ, दुनिया में एक जगह है जिसे जन्नती टुकड़ा कहा गया है, वो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। लेकिन उसमें यह नहीं है कि जो इसमें आ गया वो जन्नती हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है ये है तो उनको कहेंगे फलाने तुहाड़े जो दूसरे मुखालिफ बुजुर्ग ने होते उत्थे गए हुए ने, कहेंगे नहीं वो तो भावें जिते मर्जी टुर जाए नहीं होएगा। तो उनका तुहाड़े भी जिते मर्जी टुर जाए इंज नहीं होता, ठीक है ना। नहीं मानने के लिए तैयार ना। इधर से जितने हमारे सियासी लीडर, फौजी लीडर बाकी जाते हैं वो बैठे ही रियाजुल जन्ना में होते हैं, उनके लिए रियाजुल जन्ना खाली करा दिया जाता है। भाई वो तो चौकड़ी मार के भी कोई बैठ जाए जन्नती तो नहीं होगा, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप वहां जाएं, इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर उमर की कब्र है, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन इसके अंदर दाखिल होने से कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगा। अहमद बरेलवी साहब ने एक शेर लिखा है, जन्नत में आकर नार में जाता नहीं कोई। उन्होंने इसी के ऊपर शेर किया। वो जब वो जन्नतुल बकी उसमें बैठे ना रियाजुल जन्ना में, तो उन्होंने कहा कि जब हदीसों में हमने सुना जो एक दफा जन्नत में चला जाएगा दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं एक बार जन्नत में आ गया हूं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। तो ये शेरों तक तो बात ठीक है, वरना तुहाड़े सियासी लीडर जिन्होंने तुसीं इन्नियां गालां कढ़दे हो दिल विच, वो तो सारे उधर जाते हैं। वो तो काबे के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, तो कब्र रसूल के लिए उनको भी अंदर लेके जाया जाता है। कहते नहीं नहीं वो नहीं जान गए, तुसी भी नहीं जाओगे भाई, कोई भी नहीं जाएगा। इस तरीके से कोई जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं, ठीक हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ये कहना ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, ये कहना दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। अगर कोई इस नीयत से कह रहा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज मदद के लिए पुकार रहा है, अगर कोई ये इस नीयत से कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत से उम्मत पे इज्तिमाई अजाब नहीं आया, जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि मैंने 3 दुआएं की, एक कबूल नहीं हुई, 2 हो गई हैं, उनमें से जो कबूल एक दुआ हुई वो ये है कि कोई ऐसा इज्तिमाई अजाब ना है कि मेरी उम्मत पूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जिस दुआ को कबूल नहीं किया गया वो ये थी कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े, वो दुआ कबूल नहीं हुई। इससे ये बात पता चली कि अल्लाह ताला किसी की दुआ का पाबंद नहीं है। नबी की दुआ भी ऐसी हो सकती है जो कबूल ना हो, अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह पे तो कोई किसी की दोस्त नहीं है। और नबी इस्लाम को उस दुआ करने से भी रोक दिया गया कि ये आपने दुआ नहीं करनी। जैसा कि कुरान पाक में आता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए कि नूह जाहिलों में से तो ना हो, काफिर के लिए दुआ कर रहा है। फिर उन्होंने तौबा की, कुरान पाक में उनकी तौबा भी नकल हुई, ठीक हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से उस मानों में कोई लेता है, लेकिन अभी ज़ाहिर है चूंकि हम जिस माशरे में उसमें तो वो कुछ और ही कह रहे होते हैं, वो हाजा मिन फदली रब्बी के अगेंस्ट कह रहे होते हैं। हाजा मिन फदली रब्बी कहना चाहिए। नबी इस्लाम ने इन चीजों से मना फरमाया। ये सख्त गुस्ताख हैं जो लोग ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक सहाबी ने अबू दाऊद में, इब्न माजा में हदीस है, शरीक अल कादी मुदल्लिस है लेकिन समा की तसरीह सुनन कुबरा अल बैहकी में, एक सहाबी ने आप अलैहिस्सलाम को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठाइए क्या कर रहा है। उनका मैंने कूफे में लोगों को हीरा नामी शहर में देखा कि वो अपने सरदार को सजदा करते हैं, हमने बेहतर समझा कि आपको करें। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया। और उसमें ये भी अल्फाज हैं जब मैं फौत हो जाऊंगा तो मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या कब्र में भी सजदा करो? उनका नहीं। तो फरमाया मुझे क्यों कर रहे हो? आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने आगे से तो मतलब ये तो नहीं कहा इश्क चले नंबर ला गए, अकल वाले ऊंचे ही उमरा गालियां, ठीक है ना जी। वो आगे से कह सकता था कि हजरत आदम को भी तो सजदा किया था फरिश्तों ने, या रसूलल्लाह क्या हुआ अगर आपको कर लिया। आज का बंदा होता तो ये आर्गूमेंट्स रखता। अहमद बरेलवी साहब ने शेर कहा है, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। वो कहते हैं मैंने जो नबी इस्लाम के रोजा मुबारक पे सर झुकाया है, तुझे क्या तकलीफ है? तेरे सामने तो मैंने सर झुकाया, दिल से तो मैं सजदा भी कर रहा था। बड़ा चंगा काम कीते अल्लाह दे बंदिया, जुल्म है यार। एक तरफ अहमद बरेलवी साहब खुद किताब लिख रहे हैं कि सजदा ताजीमी हराम है। फिका हनफी में आपको पता 2 मौकिफ है। कुछ हनफी उलमा सजदा ताजीमी के कायल हैं, तो उनके खिलाफ किताब लिखी अहमद बरेलवी साहब ने कि नहीं, ये अबू दाऊद इब्न माजा की हदीस के तहत सजदा ताजीमी हराम है। दूसरी तरफ कहते हैं सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। तो ये शेर व शायरी करते रहे, दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगला सवाल है, क्या दरगाह बीबी पाक दामन में अहले बैत की कब्रें मौजूद हैं? ये सवाल इसलिए किया गया कि बहुत से लोगों की अकीदत वाबस्ता है,
वहाँ लिहाजा इस बारे में जो गलत फहमी है उसका इजाला करें। क्या अकीदत वाबस्ता? मैं कहता हूं जी, अगर सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा भी हो पाकिस्तान के अंदर, देन व्हाट? आपने उसमें से करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा आप कब्र पे हाजिरी देंगे, ना झुकेंगे और ना उनको सजदा करेंगे, ना कब्र को चूमेंगे, दुआ करेंगे उनके लिए जो आम मैयत के लिए करते हैं। रहा सलातो सलाम पढ़ना, वो तो हर मैयत के ऊपर आप कहते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन। आप वहां जाके अस्सलामु अलैका या जो है वो अबा अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली, ये कह ले, इसी का फर्क पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि इसकी वजह से कोई इधर फर्क पड़ जाना है मेरे भाई, तो इन्हीं से पूछें कि अगर इन्हीं चीजों की वजह से फर्क पड़ना होता, इन मज़ारात की वजह से, इस वक्त दुनिया में काफरों के जेर असर सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का है ही इराक है, और सारे मज़ार उधर हैं, करबला भी उधर है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो बीबी पाक दामन के मज़ार से कोई फर्क तो नहीं पड़ जाना, ठीक है ना। बाकी ये तारीखी सवाल है, हमें नहीं पता कि है या नहीं है, ना इससे कुछ निकलना है। हम नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे हैं, वो जहां जहां दफन है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, तुम्हारा दरूद और सलाम उन तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर मस्जिद के दरवाजे जन्नत का दरवाजा होता तो फिर कुरान और हदीस में इसके जिक्र कहीं ना कहीं है। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा कि फला दरवाजे जन्नत का है? क्यों सहाबा ने कभी ऐसा अकीदा बनाया? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ लोग आवाम को खुश करने के लिए, उनका जज्बा बढ़ाने के लिए खुद से अकीदा घड़ देते हैं और फिर कहते हैं ये सब तेरे करम है, अकीदा बनाते हैं। भाई, करम सिर्फ अल्लाह का होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम लोग मुझे से उस तरह एलेबरेट मत करो जैसा क्रिश्चियन ने ईसा अलैहिस्सलाम को एलेबरेट कर दिया। लेकिन यहाँ तो बात सीधा शिर्क और गुलू की तरफ ले जा रही है। दीन को गाने और किस्से कहानियों से नहीं चलाए जा सकती है। दीन चलता है क्लीन दलीलों से, कुरान, सही हदीस और सहाबा के समझ से। और फिर जब कोई इन बातों की रिसर्च करे, एक्सपोज करे, कुरानी दलील दे, तो फिर उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। यही काम आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब करते हैं, अवाम को असली दीन की तरफ वापस बुलाना, ताकि हम लोग शिर्क, बिदात और गुलू के दाल से निकलकर सीधी राह पर चल सके। सो दोस्तों, मस्जिद का जरिया हो सकता है रिवार्ड का जरिया हो सकता है, लेकिन जन्नत का दरवाजा नहीं हो सकता करना। यह दीन में इजाफत है जिसका इस्लाम में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। इस्लाम सिंपल है, क्लीन और दलीलों पर मबनी है, और जो दीन की इज्जत करता है वो। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।